Thank you, Boji. Students, यहाँ पे we are talking about the case of a vehicle which runs at a constant power. This case is extremely useful. तो अपनी जो केस नोटबुक है उसमें ये सारी चीज़ों के साथ इंपॉर्टेंट केस की तरह से मार्क कर लीजिए. सिमिलर केसेस मैं एडवांस इलस्ट्रेशन सीरीज में भी ले चुका हूँ जहाँ पे कई बार एडवांस में भी इस तरह की चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं. Here it says a body is moved along a straight line by a machine delivering constant power. Now the distance moved by the body in time t is proportional to, that's what we need to calculate. बॉडी को आप एक व्हीकल मान सकते हैं और कांस्टेंट पावर का इंजन उसको थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है. सो इन दिस सिचुएशन आप ये ले सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम कैलकुलेट करें किसी भी व्हीकल की और किसी भी मूविंग बॉडी की, तो इंस्टेंटेनियस पावर P कैन बी रिटन एज MAV बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन में पावर होती है MAV. Now power is given to us as a constant value, so this constant. So यहाँ पे हम ये कह सकते हैं मास भी चेंज नहीं होगा, constant है, तो here the condition of motion is AV is equals to constant. We can write A as dV by dt into V is equals to constant. So this gives us the speed relation V dV. We can write as C dt if you integrate from 0 to t and this 0 to v because it is starting from rest, that's what we consider. So this gives us V square by 2 is equals to Ct, or V is equals to root of 2ct. So we have got the value of speed of body which is proportional to root t, but the question is asking distance moved by the body in time t किस relation पे depend करेगा. तो यहाँ पे v को we can write as dx by dt is equals to root 2ct. So dx gives us root 2c into root t dt. So if we integrate this relation from 0 to t and 0 to x, so distance moved can be written as root 2c multiplied by this t to power 1 by 2, so this becomes t to power 3 by 2 upon 3 by 2. So here x is proportional to t to power 3 by 2. That's what is needed for this question. Constant parameters are not asked. But अगर किसी क्वेश्चन में पावर की वैल्यू गिवन है, मास गिवन है, तो this constant can be easily handled because c is the power and here this can be written as c1, this can be written as c, क्योंकि यहाँ पे जो c का वैल्यू होगा वो होगा c1 अपॉन m. सो अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है तो अब यहाँ से p और m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p बाई m अपने आप c आ जाएगा. कोरस्पॉन्डिंगली यू विल गेट द रिजल्ट. सो बी केयरफुल इन एनालिसिस ऑफ पावर. पहले भी मैंने कुछ पावर के केसेस लिए हैं बट ये वाला केस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. आपको जो मैनेज करना है यूनिफॉर्म मोशन या इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मोशन हम पावर को लेंगे MAV. यूनिफॉर्म मोशन में पावर जीरो हो जाती है क्योंकि कोई भी पावर एडिशनली प्रोवाइड नहीं की जा रही. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ड्राइविंग फोर्स, जो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो प्रीवियस पावर के केसेस लिए थे उसके अंदर यूज़ किया था. थैंक यू बोजी. स्टूडेंट यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर का एक और केस हम डिस्कस कर रहे हैं. स्लाइटली डिफरेंट है बट लॉजिक वही यूज करेंगे जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं. इट सेज द बॉडी ऑफ मास एम एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1 in time t1 and it says the instantaneous power delivered to the body as a function of time we need to calculate. So here in solution आप ये कह सकते हैं रेस्ट से v1 यानी u equals to 0 to v equals to v1 में टाइम लगता है यहाँ पे t1. So आप डायरेक्टली कह सकते हैं if it is accelerating uniformly, acceleration can be given as v minus u by t. So this comes out to be v1 by t1. Now it says the instantaneous power delivered by the body और uniform acceleration है, that means acceleration change नहीं हो रहा है, तो this can be considered as motion in straight line because rest से चालू हुआ है. तो instantaneous power can be written as MAV. Straight line motion में power को MAV डायरेक्टली लिखा जा सकता है. So the value of power we are getting here is m, acceleration is v1 by t1 और velocity अगर किसी भी moment of time पे देखेंगे तो v can be written as u plus at. So this can be written as u is 0, a can be written as v1 by t1 into t. So this becomes m, acceleration is v1 by t1 and here v is written as v1 by t1 into t. So the value we are getting is mv1 square by t1 square into t. So this is the value of power as a function of time. We are getting power is linearly varying with time. अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करेंगे टाइम और पावर में तो it comes out to be a straight line where slope tan theta is written as mv1 square by t1 square. It is given कि at any time t1 velocity is given as v1.
थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, दिस इज द केस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ अ लोड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर। कई बार इस तरह के केसेस होंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर किसी वेट को लिफ्ट कर रहा है, एलिवेटर को लिफ्ट कर रहा है, या किसी वेल में से बकेट में से वाटर को लिफ्ट करना है, तो जो मैन रस्सी खींच रहा है, बकेट को उठा रहा है, उसका पावर कैलकुलेशन, इन सारे एनालिसिस को एक सिंगल केस से वी कैन हैंडल। हैव अ लुक ओवर हियर। ये जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वेट लिफ्टिंग के जिसमें पावर इन्वॉल्व हो रही है, द सिंगल केस विल एनालाइज एंड हेल्प यू आउट इन एनालाइजिंग एनी सच क्वेश्चन. This is the case where a 60 horsepower electric motor lifts an elevator having a maximum total load capacity of 2000 kilogram. That means situation is like this. In solution we can say there is an electric motor और मोटर की जो शाफ्ट है उस पर कोई पुली से स्ट्रिंग बंधी हुई है और यहाँ से हम एक लोड लिफ्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एलिवेटर की बात हो रही है तो लेट अस कंसीडर दिस एन एलिवेटर और मैक्सिमम लोड इसका 2000 किलोग्राम तक इसको ऊपर उठाया जा सकता है विद द टेंशन सपोर्ट. इट इज सेइंग इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एलिवेटर इज 4000 न्यूटन, मींस जिस शाफ्ट में ये एलिवेटर लिफ्ट होगा यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है दिस वैल्यू इज 4000 न्यूटन. The speed of elevator we need to calculate at full load if it is going up with the speed v, और full load means 2000 kg भरा हुआ है तो इस पे downward weight mg भी लगेगा. So in this case tension which is actually the driving force lifting it upward direction, तो maximum load पे अगर v speed से जाना है और क्वेश्चन में speed calculate करनी है, speed which will not change, it will be moving at a uniform speed, तो driving force has to balance the net force acting on the block. So यहाँ driving force का value हो जाएगा mg plus 4000 और मास अगर 2000 दिस इज 20000, सो दिस कम्स आउट टू बी 24000 न्यूटन इज द ड्राइविंग फोर्स. पावर ऑफ एलिवेटर कैन बी रिटन एज और पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी रिटन एज ड्राइविंग फोर्स टाइम्स द स्पीड. सो ड्राइविंग फोर्स इज दिस, स्पीड वी नीड टू कैलकुलेट. पावर गिवन है 60 हॉर्स पावर की मोटर है और 1 हॉर्स पावर is 746 वाट, तो दिस 60 into 746 is equals to 24000 multiplied by v. This expression gives us the speed of elevator which is 6 into 746 divided by 24. So approximately we can say here if this is 720 then it comes out to be 30. So 30 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. Approximately this can be written as 6 into 30 is and this 2400, sorry, 6 into 30 by 100 comes out to be approximately 1.8 मीटर पर सेकेंड. थोड़ा सा 1.8 से ज़्यादा होगा. आई हैव डन एन अप्रॉक्सीमेशन हियर बट हाँ ये 1.85, 1.86 और 1.9 कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड. इफ इट इज़ अ MCQ पेपर देन यू कैन इजीली चेक 1.8 से ज़्यादा 1.9 के क्लोजर कुछ वैल्यू आएगी विद द अप्रॉक्सीमेशन, बट एग्जैक्ट वैल्यू यू कैन कैलकुलेट हियर. एज फार एज कॉन्सेप्चुअल पार्ट इज कंसर्न दिस व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट, दिस इज अनदर केस जहाँ पे कई बार सिचुएशंस थोड़ी थोड़ी चेंज करके पूछे जाते हैं. इट इज आस्किंग द केस ऑफ टू पार्टिकल्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. सो विल इंट्रोड्यूस द केस ऑफ सर्कुलर मोशन एज वेल ओवर हियर बिकॉज अभी सर्कुलर मोशन के जितने भी केसेस होंगे दोज विल आल्सो बी हेल्पिंग यू आउट इन एनालाइजिंग सच केसेस. It says two particles of same mass m are moving in circular orbits because of the force given by, force expression is given as minus 16 by r minus r cube. Negative sign only indicates here a particular direction. और अगर circular motion में कोई particle घूम रहा है तो force हमेशा towards center ही act करेगा. That's what you need to keep in mind. It says the first particle is at a distance r equal to 1 and second at a distance r equal to 4. So it is asking the best estimate for the ratio of kinetic energy of the first and second particle is closest to. So आप यहाँ पे सिचुएशन देखें फॉर सर्कुलर मोशन. आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है. द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हियर आई विल टेक द मैग्नीट्यूड 16 by r plus r cube should be equals to mv square by r because in circular motion force has to be providing the centripetal force necessary for circular motion. तो अब यहाँ से देखें डायरेक्टली mv square की वैल्यू आ जाती है दिस इज 16 plus r2 power 4. And kinetic energy we need to calculate, so k is equals to half mv square. This becomes half 16 plus r2 power 4. So in this case we need to calculate the ratio of kinetic energies of first and second particle where the values of r1 and r2 are given. So here k1 by k2 can be given as half gets cancelled out. This 16 plus 1 to power 4 upon 16 plus here it is 4 to power 4. So here it becomes this is 1, so 16 plus 1 is 17 divided by this can be written as 16 plus 256. So this comes out to be 17 divided by 272. That's the result of this problem. अब देखिए गिवन क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो बहुत फंडामेंटल लेवल पे सॉल्व होता है. आपको
ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है इट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में डायरेक्टली mv स्क्वायर का टर्म होता है दैट डायरेक्टली गिव्स द काइनेटिक एनर्जी। तो इफ योर ऑब्जर्वेशन इज स्ट्रांग देन व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन यू आर एबल टू एनालाइज कि ठीक है ये डायरेक्टली mv स्क्वायर है तो mv स्क्वायर से हाफ mv स्क्वायर का रेशियो निकल जाएगा। कई स्टूडेंट्स ने जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो इस फोर्स के एक्सप्रेशन को देख के छोड़ दिया था कि आई डोंट थिंक सो हम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस तरह के फोर्स वाले सर्कुलर मोशन के तो केसेस हमने करे ही नहीं है। तो ऑल्दो इट इज द क्वेश्चन बिलोंगिंग टू सर्कुलर मोशन बट डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालना है तो आपको सिर्फ एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना। सो यू नीड टू बी क्वाइट कॉन्फिडेंट इनफ कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए वो फंडामेंटली ही सॉल्व होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। अगर आपने बेस फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट डेफिनेशन पे फोकस किया हुआ है तो इजीली यू आर एबल टू हैंडल दीज थिंग्स। आइए आगे बढ़ेंगे।